Welcome back, friends. Now, let us see how Indian trade and industries were destroyed by the British rule in India. See, in the last video, we talked of how the farmers were exploited and how agriculture suffered. So, we'll now talk of the trade and industries. Once upon a time, the handloom industry of India supplied textile to the markets of Asia and Europe. The muslin cloth of India, the silk of China were in great demand in Asia and Europe. The traders from European countries used to come to India. They would come to India to purchase these commodities. So Indian made jute, silk, woolen and cotton textiles. The muslin cloth were the cotton textiles were in high demand in the European markets. The soft and delicate muslin of the Dhaka was world famous. Apart from this textile, commodities means items like salt, saltpetre, sugar were exported in exchange of tremendous amount of bullion. Bullion means gold and silver. Apart from that, we also have the spices of India. Indian spices were in large demand in the markets of Europe and even Middle and Eastern Asia, Western Asia. But this whole scenario changed as the British rule was implemented in India. The flow of money got reversed. हमने बोला ना कि India being from an exporting country, we became an importing country. In the beginning of the Industrial Revolution, this is around somewhere near 1800. Sorry, not 1800s, but we can say the Industrial Revolution occurred around in the 1780s. In the 1780s, British took 500 crore rupees as per today's standard only from Bengal. Only from Bengal. Imagine doing the rule. Just imagine the wealth the British had accumulated from the entire country. Right? With the help of the raw materials produced in India, India से वो raw material लेते थे, and the money collected from India, the businesses and industries in England prospered. हमारा कच्चा माल और हमारा पैसा से उन लोगों ने वहाँ पे बिजनेस सेटअप किया, and उनका मिल्स प्रोग्रेस होने लगे. The cloth manufactured in England was imported again to India without levying any duty on it. See, cheating कर रहे, they were big cheats. इंडिया का कच्चा माल, so the raw materials जो इंडिया में था, like cotton, right? अभी let's say cotton which was made in India, which was grown in India, ये इंग्लैंड जाता था. इंग्लैंड के मिल्स में कपड़ा बनता था. वही कॉटन कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज या इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी कपड़ा बनता था. ये दोनों कपड़ा इंडियन मार्केट में आता था, इंडियन पीपल के आता था. लेकिन इंडियन मिल में बना हुआ, इंग्लैंड की मिल में बना हुआ कपड़ा का 0% ड्यूटी होता था, वाल इंडियन इंडस्ट्रीज को 80% टैक्स पे करना होता था. सो इसके कारण क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज में बना हुआ कपड़ा महंगा हो गया, इंग्लैंड के मिल्स का बना हुआ कपड़ा सस्ता था. तो ऑब्वियसली मार्केट में कौन क्या लेगा, मार्केट में इंग्लैंड के मिल का ही कपड़ा बिकेगा. तो इसके कारण हमारे इंडियन मिल्स पूरे पुश हो गए, बंद हो गए. राइट. तो 80% टैक्सेस ऑन मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ इन इंडिया. सो अल्टीमेटली आवर इंडियन क्लॉथ बिकेम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ. इमेजिन इंडिया का कपड़ा कॉटन इंग्लैंड जाने के बाद वापिस हमारा इंडिया आने के बाद भी वो सस्ता था, और इंडिया का कॉटन इंडिया में बन के भी वो कपड़ा महंगा होता था. रिजल्ट क्या हुआ, द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन and they were out of business. So many skill based industries like textile industry, glass, paper, mineral, shipbuilding got ruined due to the policy of British. और ये इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गए तो लैक्स ऑफ स्किल वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड. बेचारे ये काम जो कारीगर थे उनको काम बंद हो गया, एंड अल्टीमेटली ये लोग कारीगर अभी खेती पे आ गए और खेती पे डिपेंडेंसी बढ़ गया. सो पुअर वर्कर्स ऑफ रूरल इंडिया
बिकेम पुअरर, बेचारा उनका हालत बहुत ख़राब हो गया, बिकॉज यू कैन सी दिस पर्सन, वो बेचारा जॉबलेस बैठा है, कुछ काम ही नहीं है उसके पास. ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ अ न्यू टॉपिक, सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स. अभी जो रिफॉर्म्स हुए, कुछ अच्छे रिफॉर्म्स थे, बट पीपल टुक इट विद सस्पिशन. अभी विलियम बेंटिक करके जो गवर्नर जनरल था, अच्छा आदमी था, व्हेन ही केम टू इंडिया, लिबरल थिंकिंग वाज गेटिंग इट स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में भी लोग लिबरल यानी आज़ाद ख्याल वाले लोग आ गए थे, बदलाव की बात कर रहे थे. यूरोप में भी बदलाव का पूरा माहौल चल रहा था. इन इंग्लैंड लिबरल थिंकिंग रीच, दिस थिंकिंग स्लोली रीच इंडिया ऑल्सो. The British rulers now started taking interest in the lives of the people of India. William Bentinck जो था, he became quite popular in India by introducing reforms which are beneficial to India. Indians started getting job in the company administration. Indians were allowed to use their mother tongue यानी अपने local language में in the court of law. राजा राम मोहन रॉय एंड अदर रिफॉर्मर्स, हम बाद में देखेंगे उनके बारे में भी, वो कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ evil practice of sati. तो बेंटिंक agreed to these efforts and passed a law in 1829 to ban the practice of sati. तो ये गुड थिंग्स थे ना. ऐसे ही during the time of Bentinck, the English rulers they tried to eradicate means remove the social evils as per the will of the social reformers. Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, बहुत सारे people were there were reformers. अच्छे उनका बदलाव लाना चाहते थे इंडियन समाज में, और इंडियन समाज में बदलाव लाने के लिए जो वो दे वर वर्किंग, बेंटिंक करके आदमी ने हेल्प भी किया उनको. लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उन लोगों ने यही रिफॉर्म्स को शक से देखा और दुष्प्रचार किया कि दे वर टेलिंग कि नहीं ये ब्रिटिश लोग हमारा बहुत ख़राब है, हमारे सभ्यता को नाश कर देंगे, हमें कन्वर्ट कर देंगे वगैरह वगैरह. दे ट्राई टू क्रिएट सस्पिशन. अभी कंपनी ने डिसाइड किया था टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिंक. 1834 ईयर में लॉर्ड मैकोले करके एक आदमी ने he thought of introducing English education in India. However, जो English education जो मैकोले लाया, it could not benefit the Indian youth. So Indians lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestors. British education system को लोगों ने अपोज किया, यार काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स ने अपोज किया. महात्मा गांधी तो वहाँ तक बोला है कि इंडिया के लाखों लोगों को अगर ब्रिटिश इंग्लिश नॉलेज देना तो वो उनको गुलाम बनाने जैसा है, राइट, और पूरे कंट्री को उन लोगों ने गुलाम बना के रखा है. अभी 3 यूनिवर्सिटीज वर इस्टेब्लिश्ड इन 1857 एट बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. दिस 3 यूनिवर्सिटीज वर इस्टेब्लिश्ड इन 1857. हायर एजुकेशन का संस्था थे. बॉम्बे आज मुंबई, कैलकाटा आज कोलकाता और मद्रास आज चेन्नई. और इसके ब्रिटिश को फायदा हुआ. ब्रिटिश नाउ कुड गेट एन एजुकेटेड वर्कफोर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. उनको इंग्लिश में सीखे पढ़े लिखे लोग मिल गए जो अपने लिए काम कर सकते थे. ये ब्रिटिश का फायदा हुआ. एट द सेम टाइम हमारा फायदा क्या हुआ? इट ऑल्सो डेवलप नेशनलिस्टिक थिंकिंग अमॉन्ग एजुकेटेड इंडियंस. हमारे जो फर्स्ट लीडर्स थे, कांग्रेस के जो अर्ली लीडर्स थे, आज़ादी के पहले लीडर्स थे, वो सब ब्रिटिश स्कूल में पढ़े लिखे लोग थे. बड़े बड़े पोस्ट पे आए थे, ब्रिटिश में बड़े जॉब पे थे, या बड़े बड़े वकील थे, बड़े बिजनेसमैन थे. और उन लोगों ने उनको यूरोप का हिस्ट्री पता चला, और यूरोप के हिस्ट्री को जान के उनको भी लगा कि हम भी वाई नॉट वी बिकम फ्री. और वो इंडिया की फ्रीडम के लिए बात करने लगे. नाउ मैनी मशीन्स ऑल्सो वर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और ब्रिटिश लोगों ने ये इंडिया में भी लेके आए. एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में, मिलिट्री के लिए लोगों ने ये कुछ यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया. जैसे रेलवेज जो थे वो इंडिया में लाए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री वाइज में उनको इजी पता था. तो फर्स्ट रेलवे जो था इंडिया का,
वो बॉम्बे एंड थाना के बीच में 1853 में चालू हुआ था. तब द गवर्नर जनरल था डलहौसी. डलहौसी वॉज द गवर्नर जनरल, राइट. यानी डलहौसी टाइम में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए इंडिया में, टेक्निकल रिफॉर्म्स आए. सेम वे देखो, इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द कंट्री and to exchange messages in the neighboring territories, modern method of post and telegraph also were introduced in 1854. Again Dalhousie के टाइम में printing press and newspaper का circulation grew alongside. इससे बहुत फायदा हुआ हमारा. ये जो reforms थे they were actually for the convenience of the British rule in India, but it proved out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. छुपा हुआ हमारा फायदा हुआ, बिकॉज हम भी कांटेक्ट में आए ना एक दूसरे के साथ. जो क्लास को इंग्लिश एजुकेशन अक्वायर करने का फायदा हुआ, वही क्लास सोशल रिफॉर्म्स और नेशनलिज्म का लड़ाई को स्पीयर हेड किया, यानी उनका लीडरशिप लिया. बिकॉज दे वर मोर फेमिलियर विद व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड. पोस्ट और टेलीग्राफ के कारण लोग नजदीक आए. तो ये जो मॉडर्न इन्वेंशंस थे उससे हमारा भी फायदा हुआ. ओके, यू कैन सी हमारे जो लीडर्स थे जो नेशनलिज्म की लड़ाई में हमारे बहुत बड़ा भाग लिया. यू कैन सी सब लीडर्स, गांधी जी से लेके इवन पंडित नेहरू या सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस या उनसे पहले जो भी लीडर्स थे, ऑल ऑफ देम वर एजुकेटेड इन इंग्लिश. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक सो दिस लेसन इज ओवर नाउ. आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ पा रहा होगा. ये पूरा कंटिन्यू में जाता रहेगा. The whole history of British rule in India will be covered in the previous lessons and also the subsequent lessons. 8th standard में, 9th standard में आप ये पूरा history वापस आप देखेंगे. तो do learn the question answers also and do read the chapter again. Okay, so thanks for watching. Bye.